So actually, I got opportunity Mm-hmm. directly from Salesforce, and I got hike almost 350%. Thanks to the premium learning for everything. Subscribe Premium Learning's YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. Hi everyone, this is Pooja from Premium Learning Systems, and I welcome you all to the series Aspirers to Inspirers, in which we share success stories of our students, which can be inspirational to every student, every aspirer watching these videos. Today, I'd like to start with my favorite quote, which says, "Within us is infinite power. Around us are boundless opportunities, and before us are endless possibilities. All that we have to do is believe in ourselves. After that, the results we get can be above and beyond of our imaginations." Today, I'll be talking to a guest who has achieved such a result which is above and beyond one's imagination. Let's hear what result he has achieved. Let's hear out what is his story. The name of today's guest is Sanjay Ramshinde. Sanjay, congratulations on your huge success. We are very glad to have you on this forum. Thank you, Pooja. Thanks for giving me this opportunity, and thanks for everything from I get from the premium learning. You're welcome. It was really great experience with the premium learning, and I achieved a lot what I expected. थैंक यू. सो संजय, जैसे मैंने आपको कहा, जैसे मैंने अभी जस्ट सबको कहा है दैट द रिजल्ट्स दैट यू हैव अचीव्ड आर अबव एंड बियॉन्ड वंस इमेजिनेशन. तो you justify that. You tell this to the audience why I have said this. Yes. So actually, I got opportunity directly from Salesforce. Okay. I got a chance, and I got hike almost 350%, which Yes. is beyond my imagination as well. Exactly. So Sanjay has got an opportunity from Salesforce with 350% of hike. And Sanjay, that is a huge success. So I would like to know, what's the story behind this success? Yeah, okay. So I will start from the beginning. Okay. Currently I'm working in a IT industry itself. Okay. And I have 2 years of experience. And Okay. I am working on ServiceNow domain. Okay. ServiceNow is also a cloud-based application. Yes. And I am a developer in that ServiceNow domain. Okay. So I decided, I found I'm not that much interested in a ServiceNow. Okay. So I previously heard about a Salesforce, and I got a little chance to get some idea about Salesforce. So Okay. I decided we are finding my brother is in a electrical domain. Acha. He's working with a core company. Okay. So we were finding the IT options to him. Okay. Not for me. अच्छा. Okay. But एक्चुअली उनके लिए हम ढूंढ रहे थे. तो ऐसे ही घर पे बात चली. तो सबने बोला कि अगर तुम्हें भी करना है, तुम्हें भी सेल्सफोर्स में आना है, तो तुम भी मतलब क्लासेस वगैरह लेके तुम भी मतलब ट्राई कर सकते हो. यस, ट्राई कर सकते हो. क्योंकि हमने बहुत लोगों से सुना था कि सेल्सफोर्स मार्केट में बहुत ग्रो हो रहा है और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज. तो हम दोनों ने एक साथ क्लास लगाया. मतलब एक्चुअली भैया के लिए हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे. मतलब ऐसे ही माइंड में क्लिक हुआ, तो मैंने भी मतलब चूज किया. तो उसके बाद अगस्त बैच में मैंने सबसे लास्ट एडमिशन लिया. आई गेस मैं सबसे लास्ट था. ओके. तो मैंने मतलब फर्स्ट वीक जो था बहुत मतलब सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है. मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें बताई. तो मैं थोड़ा मतलब मोटिवेट हुआ कि मतलब हाँ ठीक है सर, अच्छा पढ़ाते, मतलब थोड़ा सा मोटिवेट भी करते. मोटिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है करने के लिए. राइट. तो मैंने ज्वाइन किया. उसके बाद जैसे सर ने बोला वैसे मैंने पाथ फॉलो किया. और उसके बाद क्लास कंप्लीट होने के बाद मैंने सर्टिफिकेशन किया.
राइट. और जैसे ही क्लास कंप्लीट हुआ मेरा 3 मंथ का नोटिस पीरियड था, तो Okay. विदाउट ऑफर मैंने डाल दिया था. तो उसके That was a उसके बाद daring. दैट वाज वेरी लाइक मैं भी थोड़ा मतलब ये करूँ या ना करूँ इसमें कंफ्यूज था. मैंने सोचा अभी यहाँ से जाना ही है तो मतलब सोचना किस बार, मतलब क्यों सोचना है, तो मैंने बिल्कुल. डायरेक्टली पेपर डाल दिया. Okay. तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया तो सबसे पहले मुझे मतलब कॉल आया था कॉग्निजेंट का. Okay. तो उसका मैंने अपेयर किया, वो कॉल मतलब अटेंड किया अच्छा. इंटरव्यू. वहाँ पे भी मेरा सिलेक्शन हुआ. Okay. फर्स्ट ही इंटरव्यू था मेरा वो सेल्स फोर्स के लिए, और फर्स्ट इंटरव्यू में मैंने अच्छा. मतलब सिलेक्ट हुआ. उसके बाद फिर बहुत सारी कंपनीज के कॉल आते थे. Okay. लेकिन वो बोलते थे आपका 2 years एक्सपीरियंस है, बट रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपका नहीं है, तो मतलब हमें Exactly. रिलेवेंट एक्सपीरियंस वाला चाहिए. आप completely नए थे to Salesforce. Yeah, right. So I do not have any hands-on experience on Salesforce. मेरा सर्विस नाउ पे था. तो Okay. कुछ कंपनीज ऐसी थी कि जो सर्विस नाउ सेल्सफोर्स दोनों पे मतलब वर्क करती थी. तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि हम सर्विस नाउ में आपको ऑफर करते हैं. मैंने Okay. बोला नहीं, मैंने ये पाथ चूज किया है, मैं इसी पाथ से जाऊंगा. और लास्ट में सडनली मुझे सेल्सफोर्स से कॉल आया. Okay. उनको मैंने क्लियरली बताया कि मेरा कुछ रिलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है. उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं है, हम इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं, अगर आपने वो क्रैक किया तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी. मैंने बोला चांस मिल रहा है तो छोड़ना क्यों, इसलिए मैंने मतलब अटेंड किया. तो इंटरव्यू को जो इंटरव्यू लेने वाले पर्सन थे उनको भी मैंने बोला कि मुझे ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है. Okay. मैं 3-4 महीने से मतलब ट्रेनिंग किया है और मुझे मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है मैं. तो उन्होंने बोला ठीक है. उन्होंने सब मुझे थोड़ा एवरेज लेवल के क्वेश्चन पूछे, जैसे कि मैंने उन्होंने उनसे बोला था कि मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो उन्होंने थोड़े एवरेज लेवल के क्वेश्चन पूछे. और सेल्सफोर्स के पूरे एस्पेक्ट मतलब एडमिन पार्ट, डेवलपर पार्ट, सभी इस पे 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछे. Okay. तो मैंने ऑलमोस्ट क्वेश्चंस के आंसर दिए उन्हें. अच्छा. तो उन्होंने, मुझे भी नहीं लगा था कि वो क्लियर करेंगे मेरा इंटरव्यू. तो क्लियर हो गया. उसके बाद मैनेजरियल इंटरव्यू हुआ, वो भी क्लियर हुआ. Great. तो उसके बाद और you finally landed in your dream company then. Yes. Great. तो संजय, आपने अपने भाई के लिए आपके शुरू किया स्टार्ट करना a new option in IT, a new stream in IT, and then you found Salesforce a little attractive, and then you decided to give it a try. फिर आपने Premium Learnings join किया. Premium Learnings क्यों join किया? I mean, what was the thing that clicked and made you decide that yes, this is the place where I have to learn the new technology? एक्चुअली मेरे भैया है, उनके फ्रेंड ने यहाँ से आपके यहाँ से क्लास किया था. Okay. तो उनको भी मतलब अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली. 3-4 साल उनका कुछ एक्सपीरियंस है सेल्सफोर्स में. अच्छा. तो उनको भी मतलब बहुत गुड सैलरी पैकेज है, मतलब बहुत अच्छी कंपनी में वो काम करते हैं. तो हमारा घर पे डिस्कशन हुआ, तो भैया ने भी जो डेमो वीडियोस है वो उन्होंने देखे. उन्होंने भी मतलब बोला कि अच्छा है. उसके बाद मैंने भी वो सेम वीडियोस देखे. तो मुझे भी मतलब जो टीचिंग स्टाइल है सर का, और जो मतलब पर्सनली सर इंटरेक्शन करते हैं, जैसे कि अभी हम क्लास में नहीं, हम वर्चुअली क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो इंटरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है. बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. यस. और अगर क्लास में है तो बात अलग है, क्योंकि वहाँ तो फेस टू फेस बात होती है. लेकिन वर्चुअली जो इंटरेक्शन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. क्वेश्चन डाउट क्लियरेंस हो या मतलब जो डाउट कम्युनिटी है, वो भी अच्छा ऑप्शन है. इस बातों से मुझे मतलब अच्छा लगा कि मतलब एक तो टीचिंग स्टाइल है और इंटरेक्शन एंड प्रॉपर गाइडेंस. ये दो तीन चीजों से मुझे लगा कि ये क्लास ज्वाइन करना चाहिए. तो आपने एक्चुअली बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स बताए यहाँ पे. तो I'd like to ask you a further question regarding the point you said, which is teaching style. तो आपने 2-3 बार जब कहा कि you liked his teaching style, so what did you find unique about his teaching style? क्या आपको अलग लगा, क्या आपको भाया? Yes. जैसे कि अभी दूसरे क्लास मतलब मैंने किसी क्लास में ज्वाइन नहीं किया है. लेकिन
मैंने जैसे कि यूट्यूब में कुछ वीडियोस देखे, वो Okay. बताते हैं कहाँ क्लिक करना है, कैसे करना है, लेकिन क्यों करना है ये नहीं बताते। तो वही अगर क्यों करना है ये पता चल गया तो कंसेप्ट क्लियर होता है। Exactly. और कैसे करना है ये बताया तो कैसे करना है ये पता चलता है, लेकिन क्यों करना है ये पता नहीं चलता। दैट इज इम्पोर्टेंट। तो उसकी वजह से मतलब मैंने उसी बात पे फोकस किया और मतलब सर को फॉलो किया थ्रू आउट द क्लास। मैंने फॉलो किया सेम प्रोसेस, और उसकी वजह से मेरे बेसिक बहुत स्ट्रांग हुए। That's great. मतलब somebody who feeds you for a day, वो आपके एक दिन की ये करता है, बट जब कोई आपको कुकिंग करना सिखा देता है तो आपको लाइफ टाइम के लिए सपोर्ट मिल जाता है, समथिंग लाइक दैट. व्हेन योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, then you can thrive, then you can learn further more and more, right? So that's great. तो आपके basic concepts clear हुए. That's what you think is more important. You also did talk about doubt clearance, doubt community, right? So did doubt community help you in clearing your doubts? Did you find that helpful? Yes, like जैसे भी मैं किसी पॉइंट पे मुझे क्लियरेंस चाहिए तो मैं सबसे पहले डाउट कम्युनिटी में जाता था. वहाँ पे सर्च करता था. एक्चुअली वहाँ मुझे पोस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सेम क्वेश्चन किसी और को आ सकता है. तो मैंने सर्च किया, वहाँ पे मुझे बहुत सारी चीजों के ऑलरेडी आंसर्स मिले. Exactly. That is the sole purpose of doubt community, because the questions that come in your mind, they may have appeared in others' mind a lot before. तो आपके doubts already cleared होते हैं a lot of times, and when they're not clear, then you can go ahead and ask a new question. That's great. Yes, that's great. Right. और जो interaction था आपका 1-to-1 हो, सर के साथ हो, सर ने जो doubts clear किए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जो करियर गाइडेंस के हमारे सेशंस होते थे अगेन एंड अगेन, राइट? सो व्हाट डू यू फील अबाउट दोस सेशंस? That sessions was very important. Like I had a question 2-3 times. I had a question and I directly interacted with the sir. Like also I send emails to sir. Like notice period के टाइम पे मैंने क्वेश्चन किया था सबको. नोटिस है मेरा इतना, तो मैं नोटिस डालो यार. एक्चुअली सर ने रिकमेंड किया था कि विदाउट ऑफर मत डालो. फिर भी मैंने बहुत सोचा और मैं कंफ्यूज माइंड में था, तो फिर भी मैंने नोटिस डाला. लेकिन जो डाउट क्लियरेंस मतलब जैसे कि लेक्चर स्टार्ट होता था, सर एवरीडे 5-10 मिनट्स डाउट क्लियरेंस के लिए मतलब स्पेंड करते थे. जैसे कि किसी को लास्ट लेक्चर में कुछ डाउट हो या उस मतलब कुछ प्रैक्टिस करते टाइम डाउट आ रहा हो, तो सर डायरेक्टली इंटरेक्ट करते थे और बताते थे मतलब कहाँ आप गलत हो और कहाँ आपको मतलब इम्प्रूव करना चाहिए. दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट. तो हर स्टेज पे, हर स्टेप पे ही वाज गाइडिंग यू throughout. Yes. In premium learnings the sessions are very practice oriented. मतलब practice में believe करते हैं. What do you think? How does that help? Practice की क्या अहमियत है? What do you think in your struggle, in your journey towards success? Actually, in IT industry, practice is a very, very important, because you can learn basics, but practically you have to do and you have to perform beyond that practical things, because आपको जैसे कि रिक्वायरमेंट से मतलब थ्योरेटिकल बेस रिक्वायरमेंट नहीं है. जैसे क्लाइंट चाहता है वैसे हमें बनाना है. बिल्कुल. तो वहाँ पे उसके लिए हमें मतलब प्रैक्टिकली ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, साउंड होना चाहिए. तो प्रीमियम लर्निंग में सर ने भी प्रैक्टिकली मतलब क्लास में भी प्रैक्टिकल जैसे कि सर करके दिखाते थे कि वर्कफ्लो कैसे बनाना है, प्रोसेस बिल्डर कैसे बनाना है. मैंने सेम लेक्चर के बाद मैं सेम प्रोसेस फॉलो करता था. और जो कि प्रैक्टिस के लिए प्रोजेक्ट दिए है सर ने, 4-5 प्रोजेक्ट्स हैं. वो टोटल प्रोजेक्ट्स मैंने खुद से ट्राई किए. और जो ट्रिगर्स भी मैंने खुद से ट्राई किए. सर ने जो बताया उसकी भी प्रैक्टिस की. उसकी वजह से मतलब प्रैक्टिकली मैं थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग हो गया, कॉन्फिडेंट हो गया. ग्रेट. आपने सर यू डिडंट जस्ट ड्रीम, यू वर्कड एट इट, राइट? and you got the results. Yeah. Sanjay, तो
जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, you've got a huge success, a massive success for this stage of 2 years experienced person. So what has changed in you? What has changed within you before and after this opportunity, this success? Yeah, I can say due to this opportunity, I changed my way to see the world. Like if we do hard work, we can achieve everything. Exactly. That's I did in the last 4 months. I did a hard work, and I followed the proper path towards the success. That is a very important in your life. That's why I achieved this success. Work Like, hard in silence. Yeah, right. And let the success make noise. That's Yes, your correct. agenda, right, Sanjay? Yes, right. Yes. So great. So Sanjay, we are very glad that a student of ours has been able to achieve such huge amount of success. So Sanjay, the next question that I have for you is, प्रीमियम लर्निंग से आपने नॉलेज या अपॉर्चुनिटी के अलावा और क्या पाया? What is that you remember about premium learning system? What is that you will remember forever from of premium learning systems? Actually, सर की मुझे एक बात हमेशा याद रहेगी. जैसे कि कुछ स्टूडेंट ने पूछा था, सर हमारे पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, क्या हम सेल्स फोर्स में बता सकते हैं क्या 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस? मतलब हम झूठ बोल सकते हैं? फेक एक्सपीरियंस लगा सकते हैं क्या? यस, फेक एक्सपीरियंस लगा सकते हैं क्या? तो सर ने, मतलब मैंने ये दो तीन बार बात सुनी थी सर से कि अगर आप मतलब कॉन्फिडेंट हो तो आपको झूठ एक्सपीरियंस लगाने की जरूरत नहीं. मतलब ट्रूथ के साथ अगर स्टिक रहोगे तो ज्यादा सक्सेस मिलेगी. सेम मेरे साथ वही हुआ. मैंने किसी भी स्टेज में झूठ नहीं बोला. Exactly, that had been your attitude throughout the interview. That's what I understood from your answers, right, Sanjay? Yes. Yes, right. So वो बात मुझे ज्यादा याद रहेगी. मतलब throughout like my life, I can say. Great. एंड तक ये बात याद रहेगी मुझे. That's great, Sanjay. So it's been a wonderful journey, Sanjay. So now we are able to see you as a successful person. But इस successful person का struggle क्या था? Did you face any struggle? Did you face any points where you thought that no, I should take a back seat now? ऐसे कुछ मौके आए, ऐसा कुछ टाइम था? वैसे जस्ट 15 days बैक मैंने ये फेस की है. Oh my God. 1 week before I got an offer. Okay. So अगर स्ट्रगल की बात है तो मैं थोड़ा स्ट्रगल पे पहले बात करता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा के बारे में. बिल्कुल. तो जैसे कि मैं सर्विस नाउ पे डेवलपर हूँ, तो मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसमें हमें वेरी शॉर्ट डेडलाइन में मतलब एप्लीकेशन ये करना था, क्लाइंट को देना था, डिलीवर करना था. ओके. हाँ, डिलीवर करना था. ठीक है. तो वेरी शॉर्ट डेडलाइन थी, तो हमें मतलब बहुत टाइम वहाँ पे स्पेंड करना पड़ता था वो ऑफिस वर्क में. जैसे कि मिनिमम 10 आवर्स तो हम वर्क करते थे. उसके अलावा मैंने क्लास किया और उसके अलावा मैंने डेली 2 आवर्स प्रैक्टिस के लिए दिए. मतलब 10-11 आवर्स वर्क, ऑफिस वर्क प्लस 4-5 आवर्स लर्निंग के लिए दिए. मतलब ऑलमोस्ट 15-16 आवर्स में डेली 2 मंथ्स के लिए स्पेंड करता था. मेरे फैमिली में पापा मम्मी बोलते थे कि मतलब इतना टाइम मत ये करो, मतलब टाइम लो तुम्हारा, थोड़ा लेट होगा लेकिन होगा. तो लेकिन मैंने ठान लिया था कि नहीं, हमने जितना टाइम डिसाइड किया है उतना ही टाइम में मतलब कवर करना है. तो ये तो थोड़ा स्ट्रगल किया उस टाइम, थोड़ा सा मतलब स्ट्रगल हुआ, थोड़ा हार्ड वर्क लगा और थोड़ा पेशेंस भी लगा, क्योंकि कंटिन्यूअस 2 मंथ्स इतना काम करना मतलब थोड़ा yes, it is exhausting. Yes, एग्जॉस्टिंग. मेंटल स्ट्रेंथ में थोड़ा सा मतलब ये होता है. और उसके बाद मैंने बोला, जैसे कि मैंने नोटिस पीरियड डाला था विदाउट एनी ऑफर,
तो 1.5 month मेरे पास एक भी ऑफर नहीं था, तो मैं थोड़ा सा मतलब डिप्रेशन टाइप वाली सिचुएशन आई थी. I completely understand that. Yes. एंड जैसे कि 1.5 months हुए थे, तो मतलब मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में गया. उसके बाद मैंने खुद को संभाला. मैंने बोला हमारे पास और 1.5 महीना है, तो फिर से स्टार्ट किया मैंने. सब मतलब थोड़ा सेल्फ मोटिवेशन दिया खुद को और फिर से स्टार्ट किया. उसके बाद मेरा Salesforce का टेक्निकल इंटरव्यू हुआ. तो मतलब थोड़ा सिचुएशन वैसे मतलब हैंडल फेस किया मैंने भी, लेकिन खुद को जल्दी संभाला. जब हम जमीन पे गिरते हैं तब हम डबल रेट से बाउंस बैक कर सकते हैं, राइट? सो यस, सो यू बाउंस्ड बैक and you achieved the success. That's great, Sanjay. So it's already a very inspirational story for everyone who is hearing you, who is listening to you right now, Sanjay. But फिर भी in essence, what would you like to tell to every aspirant, everyone who is wishing to enter into IT right now? I can say hard work and patience is very very important. बिकॉज बिना हार्ड वर्क के किसी को सक्सेस नहीं मिलती. सक्सेस इज नॉट अ मैजिक, इट्स अ रिजल्ट ऑफ अ हार्ड वर्क एंड अ पेशेंस. सो हार्ड वर्क करो, पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सक्सेस विद इन अ वन डे कभी मतलब वी कैन नॉट अचीव सक्सेस विद इन अ वन डे और वन नाइट. सो वी हैव टू वर्क हार्ड, वी हैव टू बी पेशेंस and be truthful. That is also very important. Exactly. क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने बोला था तुम्हारे पास 2 years का एक्सपीरियंस है, अगर तुम झूठ नहीं बोलोगे तो तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी. लेकिन but yes, you found a mentor who stopped you from doing that, and the result is visible to everyone these days. So एक क्वेश्चन जो अब इस पॉइंट से आता है, what do you think is the importance of a mentor? Mentor की क्या अहमियत है इस जर्नी में? Hard work, undoubtedly the most important thing. Dedication is very important. Along with that, what do you think is the importance of the mentor? Like in your case, it was Sudhanshu sir, right? Yes, sir. So mentor is a guide for us. We know where we have to go, but we do not know how we have to go. Yeah. So mentor हमें पाथ दिखाता है. मतलब कहाँ जाना है हमें पता है, लेकिन कैसे जाना है ये मेंटर से पता चलता है. सो मेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि सुधांशु सर ने मुझे प्रॉपर गाइड किया. मतलब कब जैसे कि ट्रेल हेड कब स्टार्ट करना है, कब एग्जाम देनी है, मतलब PD1 एग्जाम जो मैंने किया. तो और अगर हमें कुछ डाउट आता है तो हमें कोई ना कोई तो मेंटर होना चाहिए जो कि हमारे डाउट क्लियर करे, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सके. We cannot do everything by our own. So at every stage where you were confused, sir was there to show you the right path. Yes, right, correct. Right, Sanjay. That's great. And now you can be a mentor to a lot of students out there, because they'll be inspired from the success that you've achieved. And it was not overnight. Rome was not built in a day. Success is not achieved in a day, in a month. It needs a huge amount of struggle too. This Sanjay Shinde is a great example of that. Sanjay, we are very, very glad that we were part of your journey, and we're very glad that you accepted our invitation and you shared your story with us today. Thank you for being with us today. Yeah, thank you, Pooja. Thanks to the Premium Learning for everything. I achieved this success because of Premium Learning. I got a proper guide and a proper team to support me throughout the training process. Thanks to everyone from Premium Learning. That's very humble of you. Thank you very much, Sanjay, and we wish you all the best, all the very best for your career, for your future endeavors. Thank you. Yeah. Thank you, Pooja. Thank you.